और पढ़ने वाले हैं what is an inner class. We have worked with classes that are member of a package. You have worked with classes that are member of a package. A class which is a member of a package, which is a member of a package is known as top level class. Okay, top level. So this concept is more or less clear to you because you people are programming for more than 4 years and you have used all the top level. So a class can also be declared within another class. Within class is called inner class or nested class or nested inner class or nested class. If the class is declared if the class is declared within another class explicitly or implicitly, or it is called nested class. Acha, inner class and nested class, na, there is a difference, right? So a class can also be declared within another class is called inner class, not nested class. Okay, it's not a nested class. A class can also be declared within another class is called inner class, and if a class declared within another class is explicitly or implicitly declared static, it is called nested class. Nor there is an inner class. Right? A class that is declared another class, right? This type of class is called inner class, and if the class declared within another class is explicitly or implicitly declared static, it is called nested class. Nested class is a type of inner class. Okay, is called a nested class. Nested class is not exactly an inner class. Okay, so we can say that nested class not an inner class, Inner class will be declared inside a block. Inner class is declared inside a block, whereas nested class will be defined inside a class. Okay, a class block. Fine. So I will show you the example also. Do not worry. So nested class, not an inner class. Okay. So the class that contains the inner class is called an enclosing class or outer class. Is called an enclosing class or outer class. Okay, so it is like this. You have declared a class, say you have declared a class public, and inside this class what you have done, you have written public class, and inside this you have written members of inner class, and after that other members of outer class. The outer class is the top level class, right? The inner class is an inner class and it is a member of outer class. Okay, let me write it down here. This is the outer class is the top level class. So this is the top level class. This is the, and the inner class is inner class. So this is the inner class. This is the inner class. Okay, and this class is called enclosing class also, a top level class or enclosing class. Top level class is called enclosing class. Okay, and there is no limit
there is no limit, no limit, there is no limit on the levels of, on the, there is no limit on the levels of, on the levels of nesting of inner classes, on the levels of nesting of inner classes, of inner classes. Okay, there is no limit on the levels of nesting of inner class. So I hope this much, this is a basic conception and this is clear, right? Acha, this class is a static class. This class is a static class. Say I want to create the object of inner class. Then now how I will create? I will write it down outer. So what we have to do? I have to write down here outer object dot new, okay, inner constructor. So this is the syntax to create the object of this inner class. Okay, so outer object must exist. Outer object must exist to create the inner object. Outer object must exist. Rule is outer object must exist to create, must exist inner class object. And why it is a static reference? You can see that why it is a static reference, because inner class is using the outer class reference, right? Inner class is using outer class reference. So that is why it is called static. That is why it is declared static, right? Implicitly or explicitly, it is declared static, right? Because you can see that inner class, inner is using the reference of outer. Inner is using the reference of out. So Adrijo, this much is fine. It's automatically static. It's automatically, and the class is declared public, and it's automatically static. It's automatically static now. And this rule is very much important. Whether you declare it static or not, it will be static. Yeah, it is a nested class. It is a nested class. Okay, it is not exactly the inner class. It is a nested inner class. You can say this is a nested. The words are a little bit different. Nested means inner also, right? But there is a difference. There is a difference between inner and the nested class. So let me write down. This is the nested class, not inner class. I have written inner class as the name of the class now. It is a nested class. Yeah, inner class means that inner class will be created locally. It will be created inside a method. Inner class will be created inside a method. So the object of inner class, creation of the object of inner class from outside the class is not possible. Okay, evenly not, it is not possible to create object of inner class within the class also, but within the method is possible. The method which we are using, inside that we are creating a class. In that now we can create that. Here we are talking about inner class. What is an inner class? And the topic will be what is an inner class and a nested class. Okay, so first I have explained you the nested, the inner class object. You must have the reference of outer object must exist to create the inner class object. So Java, when Java has started rolling into the market, Java 1.0, right? They does not support inner classes, right? They were added in Java 1.1, and slowly they got evolved, right? And in Java 8, right, they have evolved or they mature it properly. The concept has matured it properly. Okay, so inner class or classes have been implemented, inner class have been implemented fully with the help of compiler.
with the help of the compiler, okay. The compiler generates separate class file for each inner class, separate class file for each for for each inner class in the compilation unit, okay, in the compilation unit. The class files for inner class, the class files for inner class, the class files for inner class, the class files for inner class have the same format, have the same format, have the same format as the class files of top level classes, as the class files for the top level classes, top level classes, okay. Therefore JVM treats the class files JVM treats the class files for an inner and top level classes the same, inner and top level classes. However, the compiler has to do a lot of behind the scene work, to implement the inner classes. So we'll discuss later on, okay, how compiler implements, but you know that it exists. After compilation, a separate class, the compiler generates additional code for an inner class. Instead of using the inner class constructs and letting the compiler generate the additional code for you, you can write the same code yourself, okay. And this is very much easy also writing down, okay. So what are the advantages of inner class? Let me discuss advantages of inner class, using inner classes, I need to start Eclipse. Advantages of using inner. So advantage number one is they let you define classes near other classes that will use them, okay. For example, a computer will use a processor, right. So it is better to define a processor class as an inner class of the computer class. Atrijo, this point is clear? What are the advantages? So we can define the processor class inside the computer class. It's very useful, right? They provide
an additional, they provide an additional namespace, they provide an additional namespace to manage class structure. For example, before the introduction of inner classes, a class can only be the member of the package. With the introduction of inner classes, with the introduction of inner classes, the top level classes which can contain inner class, provides, this is the second important point. The third is some design patterns are easier. The adapter pattern, enumeration pattern, right, and state pattern can be easily implemented. There is another advantage. Another advantage is implementing a callback mechanism. Implementing a callback mechanism is elegant. And convenient. Using lambda expression. This we will study. There will be one or two class I will give you on lambda expression. Okay. So lambda expressions in Java 8 or later, okay, offer a better and more concise way and more spelling नहीं याद आ रहा है मेरे को यार, CISE होगा concise, more concise way of implementing callbacks in Java. और क्या है इसका, it helps getting closer in Java. ये पता नहीं चला होगा क्या बोल रहे हैं सर, ये वाला बात, लैम्डा वाला बात भी नहीं पता चला होगा. प्रोग्रामर्स मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है, फ्लेवर ऑफ मल्टीपल inheritance of classes. An inner class can inherit another class, thus the inner class has access to its enclosing class members, as well as members of its superclass. इसका मतलब ये नहीं कि ये मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस बना दे रहा है. इट इज एक्चुअली एक्सेसिंग द डेटा मेंबर्स ऑफ टू क्लासेस, enclosing class एज वेल एज इनहेरिटेड क्लास. तो दो क्लास का इनहेरिट कर लिया ना, तो इसीलिए ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का फ्लेवर है, बट ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है नहीं. समझ में आया त्रिजो? मल्टीपल इनहेरिटेंस का फ्लेवर है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है नहीं. ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है, लिख देता हूं भाई, नहीं तो तुम बोलेगा कि सर members of accessing members of two or more classes is one of the aims of multiple inheritance. बट ये एक सिर्फ एम नहीं है, और भी है multiple inheritance which can be achieved using inner classes, ठीक है. however just having access to members
just having access to members of two classes is not multiple inheritance in true sense, is not multiple inheritance in a true sense, in a true sense, yes, in a true sense. ठीक है, बस इतना ही है यार, और इसमें कुछ है नहीं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बातें करते हैं टाइप्स ऑफ इनर क्लासेस के बारे में. टाइप्स ऑफ इनर क्लासेस, टाइप्स ऑफ इनर क्लासेस. तो you can define an inner class anywhere inside the class, where you can write Java statement, where you can write Java statements. वैसे बहुत सारा एक्सेप्शन है, कहीं आप फॉर लूप के अंदर में इनर क्लास मत डिफाइन करने लग जाना, फिर बोलना सर ये नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, बट कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, वैसे फॉर लूप के अंदर नहीं कर सकते. ठीक है सर, आप बोले थे फॉर लूप में कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये भी लिख दिया हूँ, तो नहीं चलता यार. वहां पर बहुत सारी जगह पे नहीं है, बट बहुत मतलब हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है ना, तो लॉजिकली आप कहीं भी डिफाइन कर सकते हो उसको. ठीक है ना, so you can define an inner class anywhere inside the class where you can write Java statements, right? So there are कितना टाइप होगा, 3 टाइप होगा. There are 3 types of inner classes. There are 3 types of inner classes, right? So the type of inner class, the type of inner class depends. ठीक है ना, कहाँ पे डिफाइन किया, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन. अगर वेस्ट बंगाल में है, क्या बोलेंगे, बंगाली है भाई, वेस्ट बंगाल में पैदा हो गया बंगाली है. ठीक है ना, बिहार में पैदा हो गया बिहारी है, यूपी में पैदा हो गया यूपी वाला है. ठीक है, समझ में आया. तो ऐसे इंडिया में से चलता है, वैसे यहाँ पर भी है. ठीक है, तो द टाइप ऑफ इनर क्लास डिपेंड्स ऑन द location and the way it is declared, and the way it is declared. ठीक है, तो पहला है member inner class. ठीक है, ये दूसरा है local inner class. ठीक है, तीसरा है एनोनमस इनर क्लास. ठीक है, एक एक करके इनका एग्जांपल्स और डिटेलिंग देखते हैं. ठीक है, तो पहला है मेंबर इनर क्लास, MER. तो अब मेंबर इनर क्लास is declared inside a class the same way a member field or a member method for a class, or a member method of a class is declared as public, private और पैकेज लेवल. और पैकेज लेवल क्या होता है मेरा अत्रिजो, व्हाट इज पैकेज लेवल? हाँ, जिस पैकेज में स्टोर्ड है, मतलब जिस पैकेज में तुम क्लास बना रहे हो, मतलब पैकेज लेवल तो ठीक है, बट उसका एक वर्ड है, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट. क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट का मतलब होता है पैकेज लेवल. ठीक है ना, मतलब कुछ डिफाइन नहीं किया, पब्लिक नहीं डिफाइन किया, प्रोटेक्टेड नहीं डिफाइन किया, प्राइवेट नहीं डिफाइन किया, तो क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया ना. ठीक है, उसको पब्लिक मत समझ लेना, उसको क्या बोलते हैं, पैकेज लेवल. क्या बोलते हैं इसको? पैकेज लेवल. ठीक है ना, समझ में आया?
तो डिफॉल्ट द इंस्टेंस ऑफ द इंस्टेंस of a member inner class of a member only within only within only within only within the instance of enclosing class enclosing class। ठीक है, तो एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल of a member inner class ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तो लोग बना लेते हैं न्यू पैकेज, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं इनर यस क्लासेस। फाइल के अंदर बन गया क्या? चाहिए यही बन रहा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इसमें एक क्लास डालते हैं, क्लास का नाम लिख देते हैं और इसके अंदर में हम लोग डाल देते हैं इंटीजर प्राइवेट डाल देते हैं प्राइवेट। अब इस क्लास में क्या है? टायर। टायर का स्पेलिंग में मत जाओ यार, बस समझ लो यार, टायर है, TYRE होता है, बस मैंने लिख दिया TIRE, ठीक है, टायर। तो टायर का क्या होता है? टायर का डेटा मेंबर होता है प्राइवेट, रखेंगे प्राइवेट। टायर का क्या होता है? रेडियस होता है, तो डबल रेडियस, RADIUS रेडियस, ठीक है, ये बन गया रेडियस। और क्या चाहिए होगा हमको? इसका हम लोग बना लेते हैं, क्या बना लें इसका? हम लोग बना लेते हैं सोर्स में चलते हैं, सोर्स में जाके हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। जनरेट करो भाई, सिलेक्टेड तो है ही है, जनरेट कर दो। जनरेट कर दिया हम लोगों ने, कंस्ट्रक्टर जनरेट कर दिया, ठीक है। और क्या करें? प्राइवेट मेथड है और कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनपुट ले सकता है, तो गेट मेथड जनरेट कर देते हैं, सोर्स में जाके अरे क्या प्रेस कर दिया मैंने? सोर्स में जाना है, सोर्स में जाके जनरेट गेटर एंड सेटर, ठीक है, सिलेक्ट कर लो, ठीक है, जनरेट कर दो। तो गेट रेडियस और सेट रेडियस दोनों जनरेट हो गया। गेट रेडियस तो ठीक है, सेट रेडियस भी जनरेट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया तो हो गया। और ये हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया अ मेंबर इनर क्लास। ये मतलब इस क्लास का मेंबर है, दिस इज अ मेंबर इनर क्लास, दिस इज अ मेंबर इनर क्लास, ठीक है ना, इनर क्लास, ये मेंबर इनर क्लास है, ठीक है। और क्या बनाना है? और ये हो गया, क्लास खत्म हो गया, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और हम लोग कार वाला भी बना लेते हैं, कार वाला का कंस्ट्रक्टर बना लो, का जनरेट कंस्ट्रक्टर। कार में एक तो ईयर वाला कंस्ट्रक्टर है और एक तो जनरेट कर दो भाई, ठीक है, एक तो और भी जनरेट करो, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। तो जनरेट कर दो, सिलेक्ट करो, जनरेट कर दो, जनरेट कर दिया, गेट ईयर सेट ईयर, ठीक है। और कुछ चाहिए होगा क्या? और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। देखो समझ में आया कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, कि यहाँ पर हम लोगों ने कार क्लास के अंदर में एक क्लास बनाया, इनर क्लास, उसका नाम रखा क्या? टायर, ठीक है ना, उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा? टायर रखा। और उसके अंदर में ना हम लोग ये सारी चीज़ों को सेव किया, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं पूरा को, ठीक है ना। तो जैसे आप सेव करोगे, ये मतलब कोड जो है ना कंपाइल हो जाता है, ठीक है, कोड जो है कंपाइल हो जाता है। तो उसमें कुछ एरर्स वगैरह तो दिखा नहीं रहा है, बट ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा बिकॉज उसमें मेन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक और क्लास ऐड करते हैं, ठीक है, क्लास एक और ऐड करते हैं, इसका नाम रखते हैं कार टेस्ट, कार टेस्ट।
और इसमें हम लोग मेन फंक्शन लगा देते हैं, फिनिश कर देते हैं। ठीक, चलो भाई फिनिश कर दिया। तो कार का भैया ऑब्जेक्ट बनाओ पहले, कार, मेरा कार इज इक्वल टू न्यू कार। कब ली थी ये गाड़ी? 2022 में ली थी। सेमीकोलन लगा दो तो देखो इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब मेरा कार लिखो, मेरा कार, मेरा कार डॉट गेट ईयर। तो हमको ईयर मिल जाएगा कि कब का है भाई, गाड़ी कब की है। ठीक है ना। तो इसको आप प्रिंट कर सकते हो भाई, सिस आउट करके इसको आप प्रिंट कर यहाँ पे लगा दो, तो इसको प्रिंट कर सकते हो आप मेरा कार को। ठीक है। अब मान लो गाड़ी में कितना टायर, टायर का जो रेडियस है ना वो कितना है। ठीक है, तो वो बनाने हैं अपने को। तो अपने कैसे बनाएंगे, कार डॉट, देखो यहाँ पे टायर अवेलेबल है, टायर। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं TYRE, टायर इज इक्वल टू, देखो टायर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग यूज करेंगे मेरा कार का ऑब्जेक्ट, मेरा कार डॉट न्यू, ऐसे लिखेंगे मेरा कार डॉट न्यू। ठीक है ना। अब देखो अब ये टायर का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर जो है अवेलेबल हो गया। तो हम लोग इसमें 15 इंच का एक टायर डलवा देते हैं गाड़ी में। ठीक है। तो ये हो गया उसका टायर का। ठीक है। अब हमको अगर उसका टायर से अगर हमको इंफॉर्मेशन निकालना है तो हम कैसे निकालेगा, तो हम लिखेगा टायर, टायर डॉट गेट रेडियस। तो मेरे को रेडियस बता देगा भाई इसका रेडियस इतना है। ठीक है ना। तो देखो इस तरीके से ये काम करता है, इसका मैकेनिज्म समझ में आया। ठीक है, कैसे काम करता है। तो इसको रन करते हैं भतरीजो। ठीक है, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो ये बता रहा है कि कार का ईयर 2022 है और रेडियस जो है ना वो 15 इंचेस है। ठीक है ना। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, कंट्रोल A, कंट्रोल C और कंट्रोल V, दूसरा वाला का भी ले लेते हैं, कंट्रोल A, कंट्रोल C और कंट्रोल V। ठीक है। तो समझ में ही आ रहा है कि जब हम लोग ये वाला डेफिनेशन देख रहे हैं तो हमको समझ में ही आ रहा है कि ये जो मेंबर है, मतलब ये जो इनर क्लास है, ये एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली क्या है, स्टैटिक है। क्या है, दिस क्लास, this class is explicitly or implicitly static, static है ना। ठीक है, कैसे पता चल रहा है, ये वाला चीज को देखकर ही पता चल रहा है। जब हम उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं ना तो हम इसको ऐसे यूज कर रहे हैं, कार डॉट टायर। ठीक है ना। तो कार डॉट टायर। ठीक है। तो ये क्या है, क्लास है, ये एनक्लोजिंग क्लास है, एनक्लोजिंग क्लास। ठीक है। और ये क्या है, इनर क्लास है, इनर क्लास। ठीक है। फिर आप क्या डाल रहे हो, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट और फिर इक्वल टू, और यहां पर हम लोग एनक्लोजिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, जैसे ये मेरा कार डॉट न्यू एंड हियर यू आर राइटिंग टायर एंड यू आर राइटिंग हियर 15। तो मेरा कार इज एनक्लोजिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, एनक्लोजिंग क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट, एनक्लोजिंग क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। और न्यू इज एन ऑपरेटर, न्यू इज एन ऑपरेटर। और ये टायर जो है कंस्ट्रक्टर है। ठीक है ना, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ इनर क्लास, पैरामीटराइज्ड। तो थ्री जो यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। तो आगे का एक और पढ़ते हैं, लोकल इनर क्लास के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज लोकल इनर। तो लोकल इनर क्लास क्या होता है, इट इज डिक्लेयर्ड अ लोकल इनर क्लास, local inner class, a local inner class is declared inside, is declared inside a block, inside a block. Okay, its scope is limited
limited to the block in which it is declared, it is declared. Okay, since its scope is always limited to its enclosing block, its declaration cannot use its declaration cannot use any access modifiers. Its declaration cannot use any access modifiers such as, क्या होता है, such as public protected, public private protected. Okay, public private or protected. Typically a local inner class is defined inside a method, मतलब क्या ही रहा कि मेथड में डिफाइन करना है भाई, ठीक है. हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इनसाइड, ये स्टैटिक मेथड के अंदर भी डिफाइन किया जा सकता है. हाउएवर it can also be defined inside non-static initializers. और इसको आप कंस्ट्रक्टर के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, एंड कंस्ट्रक्टर में भी डिफाइन कर लो, ठीक है. तो एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है. चलो प्रोग्राम लिखते हैं. तो हम लोग एक क्लास बनाते हैं, ठीक है. या भाई इनर क्लास बनाते हैं, न्यू जावा क्लास बनाते हैं और इसका नाम रख लेते हैं. क्या रखें इसका नाम रख देते हैं टाइटल लिस्ट, TITLE टाइटल लिस्ट, ठीक. मेन बना लेते हैं इसके अंदर. अच्छा, मेन जो है वो नहीं बनाते इसके अंदर, दूसरे क्लास में बनाते हैं हमेशा. फिनिश करते हैं, ठीक. सो ये है हम लोग का टाइटल लिस्ट. तो क्या लें, तो लेते हैं प्राइवेट एरे लिस्ट लेते हैं. प्राइवेट एरे लिस्ट. इसमें डाल देते हैं स्ट्रिंग, ठीक है. यहाँ पे लिखते हैं TITLE टाइटल लिस्ट, LIST लिस्ट इक्वल टू एरे लिस्ट. अच्छा, न्यू लिखना भूल गया मैं, न्यू एरे लिस्ट. और ठीक है यार, लगा दो, दिक्कत नहीं, न्यू एरे लिस्ट. अच्छा, इसके अंदर में दो फंक्शन बना देते हैं, ठीक है. तो हम लोग लिख देते हैं पब्लिक वॉइड एड टाइटल, एड टाइटल, स्ट्रिंग टाइटल. और एड टाइटल में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे टाइटल लिस्ट डॉट एड टाइटल सेमीकोलन, ठीक है. और पब्लिक वॉइड दूसरा फंक्शन जो है वो लगा देते हैं रिमूव
टाइटल, रिमूव टाइटल, रिमूव टाइटल, ठीक है। तो स्ट्रिंग टाइटल, स्ट्रिंग टाइटल, और यहाँ पर हम लोग कॉल कर सकते हैं टाइटल लिस्ट, टाइटल लिस्ट डॉट रिमूव मेथड। सो रिमूव क्या करेंगे भाई, स्ट्रिंग, रिमूव स्ट्रिंग टाइटल, ठीक है। तो रिमूव कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बनाते हैं पब्लिक, पब्लिक एक आइटरेटर बनाते हैं, आइटरेटर, आइटरेटर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ये रिटर्न करेगा टाइटल, टाइटल आइटरेटर, टाइटल आइटरेटर ये बनाया। और इसको चाहिए होगा, इसको चाहिए होगा क्या, आइटरेटर ये चाहिए होगा। तो इसके अंदर में एक क्लास बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अंदर में एक क्लास बनाते हैं, क्लास, ठीक है। क्लास TITLE टाइटल आइटरेटर, RATOR आइटरेटर इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स किसको इम्प्लीमेंट करेगा, आइटरेटर इम्प्लीमेंट्स आइटरेटर, और इसमें स्ट्रिंग डाल देंगे, स्ट्रिंग STRING, ठीक है। इसको वो इम्प्लीमेंट करेगा। तो इम्प्लीमेंट कर लिया, तो यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पे ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे दो मेथड आ जाएगा, एक आ जाएगा हैज नेक्स्ट और दूसरा आ जाएगा नेक्स्ट। तो हैज नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर एक वेरिएबल और ले लेते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं काउंट, ठीक है। और ये इंटीजर काउंट है, इसमें हम लोग लगा देते हैं 0, काउंट इक्वल टू 0 लगा देते हैं। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, हम लोग लिख देते हैं काउंट इज लेस देन टाइटल, टाइटल लिस्ट, टाइटल लिस्ट डॉट साइज। अगर ये है तो रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ठीक है। और नेक्स्ट में आप क्या करो, नेक्स्ट में, नेक्स्ट में आप टाइटल लिस्ट से गेट कर दो, TITLE टाइटल लिस्ट डॉट गेट और काउंट, ठीक है। और काउंट को आगे बढ़ा दो, काउंट को गेट करने के बाद काउंट को एक आगे बढ़ा दो। तो ये बन गया हमारा लोकल इनर क्लास। ये क्या बन गया, लोकल इनर क्लास। दिस इज लोकल इनर क्लास। देखो लोकल इनर क्लास मैंने कहाँ पे बनाया, एक मेथड में बनाया, ठीक है ना। तो अब क्या करना है कि ये जो मेथड है ना, ये आइटरेटर रिटर्न करता है, ठीक है। और टाइटल आइटरेटर क्या है, आइटरेटर है बिकॉज इट इज इंप्लीमेंटिंग आइटरेटर इंटरफेस। आइटरेटर करके इंटरफेस है, उसको ये इंप्लीमेंट कर रहा है। तो दैट मीन्स टाइटल आइटरेटर इज अ रिलेशनशिप, क्या हो रहा है, इज अ रिलेशनशिप है। तो टाइटल आइटरेटर इज अ आइटरेटर। तो ये आइटरेटर है, तो इसका ऑब्जेक्ट बना के ना रिटर्न मार देंगे, क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो भाई इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यहाँ पे आप लिख दो टाइटल आइटरेटर, टाइटल आइटरेटर, ठीक है। टाइटल, टाइटल आइटरेटर इक्वल टू न्यू टाइटल आइटरेटर, ठीक है। और रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो टाइटल आइटरेटर को, टाइटल आइटरेटर को, टाइटल, टाइटल आइटरेटर को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो देखो ये बन गया हमारा फंक्शन, ठीक है ना। तो देखो आई होप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने क्या क्या किया, ठीक है। त्रिजो समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन है क्या दिमाग में? हेलो, हाँ सर। क्वेश्चन है?
नहीं ना, इजी है ना। ठीक है, अब हम लोग, हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इनर क्लास में एक और क्लास बनाएंगे, न्यू। न्यू हम लोग बना देंगे, क्लास का नाम रखेंगे टाइटल आइटरेटर टेस्ट। TITLE, टाइटल ITERATOR, आइटरेटर टेस्ट। ये क्लास बना लेंगे, तो इसमें हम लोग मेन रख लेते हैं। ठीक है, और फिनिश कर लेते हैं। तो ये आ गया हम लोग का मेन, और यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आके हम लोग टाइटल, टाइटल TITLE, टाइटल लिस्ट। ठीक है, टाइटल लिस्ट। तो TL इज इक्वल टू न्यू टाइटल लिस्ट, ये बना लिया हम लोगों ने। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं। TL डॉट ऐड टाइटल, यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर लिया EXEPTI ऑन एक्सेप्शन हैंडलिंग, NDLING, ये ऐड कर दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोगों ने ऐड कर दिया TL डॉट फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, HANDLING, फाइल हैंडलिंग। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक और ऐड कर दिया TL डॉट ऐड इनर क्लासेस, इनर CLASSES क्लासेस। ये तीन ही ऐड करते हैं, ज़्यादा ऐड करने का तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तीन हम लोगों ने ऐड कर दिया, यहाँ पे ये नहीं डाला। ठीक है, तो ये तीन हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि प्रिंट करना है, ये तीनों को प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आइटरेटर निकालना पड़ेगा। गेट द आइटरेटर, आइटरेटर क्या है ना, तुमको इमेजिन करना पड़ेगा कि एक स्क्रोल बार है। ठीक है ना, तो वो वैसे काम करता है, ऊपर नीचे आगे पीछे जाता है। ठीक है, गेट द आइटरेटर, TERATOR, गेट द आइटरेटर। तो आइटरेटर, आइटरेटर, ठीक है, ITERATOR, आइटरेटर इक्वल टू, ठीक है, टाइटल लिस्ट डॉट, टाइटल लिस्ट डॉट टाइटल आइटरेटर। तो हमको आइटरेटर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, इसके बाद हम क्या करेगा, इसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे सारा इंफॉर्मेशन। प्रिंट ऑल टाइटल्स, ऑल टाइटल्स यूजिंग द आइटरेटर, यूजिंग द, अरे TOR, यूजिंग द आइटरेटर। ठीक है, तो इसको प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वाइल। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा गलती हो गया, ये जो आइटरेटर है ना, इसको मतलब हम लोग को इसको हम लोग को मतलब ये करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ता है। अरे गलत हो गया, एक मिनट यार, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ना, तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये इंपोर्ट नहीं याद हुआ था ना, इसलिए गड़बड़ कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आइटरेटर, ERATOR, आइटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट। ठीक है ना, हैज नेक्स्ट, ये फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन भी किया हुआ है, उसके हिसाब से तो ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिस आउट और आइटरेटर डॉट नेक्स्ट, आइटरेटर डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो ये फंक्शन हम लोगों ने खुद ही डिफाइन किया था, ये नेक्स्ट फंक्शन को हम लोगों ने डिफाइन किया था। ये जो रिटर्न करेगा ना, वो नेक्स्ट फंक्शन, इसका नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है ना, देखो यहाँ पे हैज नेक्स्ट है और यहाँ पे नेक्स्ट है, तो वो डेटा यहीं से रिटर्न करेगा। समझ में है? तो ये बन गया था, तो इससे हमारा काम जो है बहुत आसान हो गया कि हम लोगों ने लिस्ट में डेटा डाला और आइटरेटर है हमारे पास, तो उसके थ्रू हम लोग लूप चला सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है ना, तो गेट द आइटरेटर और फिर प्रिंट कर देंगे सारा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं इसको। और ये कह रहा है यार कुछ गड़बड़ है, ऐड TL, टाइटल लिस्ट ही तो था। अच्छा, समझ में आया, इसको मैंने सेव नहीं किया था, सेव कर लेता तो ये ठीक हो जाएगा, अभी ये ठीक हो जाएगा। सेव कर लेते हैं तो ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रन कर सकते हैं अपन। तो इसको हम लोग फिर क्या करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके कर लेते हैं। देखो ये हमको दे रहा है एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग और इनर क्लासेस। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, मेथड बनाया था। यहाँ पर हम लोगों ने मेथड बनाया था, एक तो ऐड टाइटल बनाया था, एक तो रिमूव टाइटल बनाया था। तो क्या हम लोग अगर रिमूव टाइटल करते हैं तो क्या रिमूव होता है क्या? ठीक है,
तो अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, TL डॉट रिमूव टाइटल, ठीक है, हम लोगों ने लिखा फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग जी, हैंडलिंग, ठीक है। तो देखते हैं ये रिमूव होता है क्या, ठीक है। रिमूव होने के बाद वापस से हम लोग ये मतलब इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको रोटेट करने के लिए ये ना, ये सारा मेथड को फिर से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दो रीसेटिंग, उसको रीसेट करना करना पड़ेगा आइटरेटर को, ठीक है। तो फिर वो मतलब रिमूव हुआ है कि नहीं हमको पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट जो है वो रिमूव हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखो उसको रन करते हैं वापस से, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो उसको ओके कर लेते हैं, सेव नहीं किया था मैंने तो वो सेव कर लेगा। तो देखो इनर क्लासेस एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग आया, फिर दिखा रहा है इनर क्लास, नहीं, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, इनर क्लासेस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग और इनर क्लासेस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, इनर क्लासेस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, इनर क्लासेस। अरे ये रिमूव नहीं किया, रिमूव टाइटल जो है वो रिमूव नहीं कर रहा है। removes the element, removes the first occurrence of the specified element from the list it is present. If it does not contain an element, it is unchanged, and more formally removes the element with the lowest index. Okay, ये तो रिमूव तो कर ही रहा है, टाइटल लिस्ट से तो रिमूव तो करना ही चाहिए था इसको। मैं तो रिमूव फंक्शन कॉल किया। ओ मेरा फाइल हैंडलिंग का एच ना कैपिटल है, ये तो ठीक ही बता रहे हैं। यहाँ पे मैंने स्मॉल दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे मैंने ना स्मॉल दिया हुआ है, इसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। हाँ ठीक है, अब कर लेगा। अरे मैं भी क्या कर रहा हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ अब हो गया, देखो रिमूव भी हो गया और वो बता रहा है दो ही बचा, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड इनर क्लासेस, ठीक है ना। तो रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो देखो आई होप समझ में आया होगा। तो होमवर्क दे देते हैं त्रिजो, और इसका ना थर्ड वाला पार्ट जो है, तो रिसर्च करके तुम कुछ इसमें क्लास वगैरह डेवलप करके मेरे को दिखाना, जावा डॉट यूटिल पैकेज, फ्रॉम जावा डॉट यूटिल पैकेज, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, और इसको एक बार रिवाइज कर लेना। इनर क्लास का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे बाय यूजिंग इनर क्लासेस। इनर क्लासेस ना हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं अपना पूरा प्रोग्रामिंग जर्नी में। इनर क्लासेस सबसे ज्यादा यूज होने वाला है हम लोग का, ठीक है ना। इनर क्लासेस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये दोनों सॉफ्टवेयर जावा में अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो ये दोनों चीजें आपको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसमें थोड़ा और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, ठीक है। समझ गया, कर लो, ठीक है फिर।